गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम जितना पिछले क्लास में पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं एनसीईआरटी से। तो सबसे पहला ये जो चैप्टर है वो क्या कहता है हमसे कि साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमैटिक नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर. You have learned in your previous classes that we come across diverse substances present in nature and changes in the daily life. Curd formation from milk. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कि कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर केन जूस, ऑन कीपिंग प्रोलॉन्ज टाइम एंड रस्टिंग ऑफ आयरन. ये सब क्या कुछ एग्जाम्पल्स हैं चेंजेस के जो कि हमारी केमिस्ट्री से हो रही है. Or for the sake of convenience, science can be subdivided into various disciplines: chemistry, physics, biology, geology, etc. बहुत सारे साइंस में सब डिविजन्स हैं. The branch of science that studies the preparation, properties, structure and reactions of material substance is known as chemistry. तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जो कि प्रेपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और रिएक्शन मटेरियल्स की उस पर डिपेंड करती है, उसे स्टडी करती है, उसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री. अब आते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री पे. ये टॉपिक उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन. Chemistry is not studied for its own sake. Rather, it came up as a result of search for two interesting things. दो चीज़ों की वजह से केमिस्ट्री की पढ़ाई की शुरुआत हुई. कौन कौन सी थी? एक थी फिलोसोफर स्टोन यानी कि पारस पत्थर, विच कुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स इनटू गोल्ड. और दूसरा था एलाइजर ऑफ लाइफ, विच वुड ग्रांट इमोर्टैलिटी. People in ancient India already had the knowledge of many scientific phenomena much before the advent of modern science. They applied that knowledge in various walks of life. ये इंडिया के जो एंशियंट पीपल थे, भले उनको केमिस्ट्री वर्ड नहीं पता था, लेकिन बहुत सारे साइंटिफिक फिनोमिनन उनकी नॉलेज थी. Chemistry developed mainly in the form of alchemy and chemistry during 1300 to 1600 CE. Modern chemistry took shape in 1800 century in Europe. After a few centuries of alchemical traditions which were introduced in Europe by the Arabs. यानी कि मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ हुई थी? 18th सेंचुरी में हुई थी यूरोप में. केमिस्ट्री पहले डेवलप कैसी थी? एल्केमी और लैक्रोस्कोपी ही चलती थी केमिस्ट्री में. Other structures, especially the Chinese and Indian, had their own alchemical traditions. These include much knowledge of chemical processes and techniques. In ancient India, chemistry is called रसायन शास्त्र या फिर रसतंत्र, रासक्रिया और रास विद्या. इंडिया में केमिस्ट्री को क्या बोला जाता है? रसायन शास्त्र, रासतंत्र, रासक्रिया और रास विद्या. It includes metallurgy, medicine, manufacture of cosmetics, glass, dyes, etc. Systematic excavations at Mohenjo-daro in Sindh and Harappa in Punjab prove that the story of development of chemistry in India is very old. Archaeological findings show that baked bricks were used in construction work. अब ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है. According to Rig Veda, tanning of leather and dyeing of cotton were practiced during the 1000 to 400 BCE. Kautilya's अर्थशास्त्र describes the production of salt from sea. ये सब हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं. शुस्त्र रुता संहिता explains the importance of alkalis, and the Chakra Samhita mentions ancient Indians who knew how to prepare sulfuric acid, nitric acid, oxides of copper, tin and zinc, sulfates of copper, zinc and iron, and carbonates of lead and iron. Rasupanishada describes the preparation of gunpowder mixture. Tamil texts also describe the preparation of fireworks using sulfur, charcoal, saltpeter, mercury, camphor. Saltpeter का नाम आ सकता है पोटेशियम नाइट्रेट को हम बोलते हैं saltpeter. Nagarjuna was a great Indian scientist.
He was a reputed chemist and alchemist and a metallurgist. His work, Ras Ratnakar, deals with the formation of mercury compounds. He also discussed methods for extraction of metals like gold, silver, tin, and copper. A book, Sarnavam, appeared around 1800s. It discussed the uses of various furnaces, ovens, and crucibles for different purposes. ये सब चीज़ें बस ऊपर से पता होनी चाहिए हमें. चक्रपाणी डिस्कवर्ड मर्क्यूरी सल्फाइड. मर्क्यूरी सल्फाइड किसने डिस्कवर किया था? चक्रपाणी ने. Oil of Iranda and seeds of mahua and calcium carbonate were used for making soap. Vramihir Brihad Samhita is sort of an encyclopedia which was composed in 6th century BCE. It informs about the preparation of glutinous material to be applied on walls and roof of houses and temples. तो ये किसने दिया था? बृहद संहिता. किसकी थी? व्रामिहिर की. It was prepared entirely from the extracts of various plants, fruits, seeds and barks, which were concentrated by boiling and then treated with various resins. Vramihir's Brihad Samhita gives reference to perfumes and cosmetics. Recipes for hair dyeing were made from plants like indigo and minerals from iron power, black iron or steel, and acidic extracts of sour rice gruel. Gandhi Euclid describes recipes for making scents, mouth perfumes, bath powders, incense, and talcum powder. Charaka Samhita mentions ingredients such as barks of plants, stem, flowers, leaves, woods, cereals, fruits, and sugarcane for making asavas. Kautilya's Arthashastra mention about many types of liquors. आचार्य कांदा कौन थे? उन्होंने सबसे पहले हमें क्या दिया था? बताया था एटॉम्स के बारे में, एटॉमिक थ्योरी. इन्हें कश्यप भी बोलते हैं. फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी. वो एटॉम्स को क्या बोलते हैं? परमाणु. उनके टाइम में भी उन्होंने क्या कहा था कि वो बहुत वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं. ही अथॉर्ड द टेक्स्ट वैसे शिका सूत्रास. चक्र संहिता में और क्या देती है? इसे हम ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक बोलते हैं और इसमें ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस भी दिया हुआ है. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल्स इज क्लियरली डिस्कस्ड इन चक्र संहिता. कैसे पार्टिकल साइज ऑफ मेटल्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं. एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी. चक्र संहिता डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ भस्मा of metals in the treatment of ailments. Nowadays, it has been proven that bhasmas have nanoparticles of metals. आगे है 1.5 लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस. क्या क्या लॉज है केमिकल कम्बिनेशन के? तो एनसीईआरटी में 5 लॉज दिया हुआ है. हमें एक और एक्स्ट्रा लॉ भी पढ़ना चाहिए जो मैं आज पढ़ाऊँगी. पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसे किसने दिया था? लैवोइशियर ने 1789 में. He performed careful experimental studies for combustion reaction and reached to the conclusion that in all physical and chemical changes, there is no net in mass during the process. Hence, he reached to the conclusion that matter can neither be created nor be destroyed. This is known as law of conservation of mass. This law formed the basis of several later developments in chemistry. In fact, this was the result of exact measurement of masses of reactants and products and carefully planned experiments performed by Lavoisier. यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो भी एलिमेंट्स बने, जो भी कंपाउंड्स बने, उनका मास हमेशा सेम होता है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद. यानी कि मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं रिएक्शन से, ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था. He stated that a given compound is always contains exactly the same proportion of elements by weight.
He concluded that irrespective of source, a given compound always combine together in the same proportion by mass. The validity of this law have been confirmed by various experiments. It is also known as law of definite proportion. यानी कि कोई भी कंपाउंड हो, उसका एलिमेंट का जो रेशियो होगा, वो उसका जो प्रोपोर्शन बाय मास होगा, वो हमेशा सेम होता है, चाहे फिर वो कोई भी सोर्स हो। पानी को मैं पॉन्ड से लेके आऊँ या फिर वेल से लेके आऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा वो H2O ही होगा। तो इसलिए सोर्स पे डिपेंड नहीं करता एक गिवन कंपाउंड का प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये दिया था डाल्टन ने क्या कहा कि इफ़ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते एक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि H2O एक कंपाउंड बना, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। जैसे कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना, तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम था, ऑक्सीजन का 16 था, साथ में मिलकर 18 ग्राम बना। तो ये एक परफेक्ट स्मॉल होल नंबर है, 2:16 का रेशियो, ये स्मॉल होल नंबर का रेशियो है। तो ये हर एक तरह के कंपाउंड के साथ वैलिड है। नेक्स्ट लॉ गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसे ऑफकोर्स गे-लुसेक ने दिया था इन 1888। इन्होंने क्या बोला, व्हेन गैसेस कंबाइन और are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. ये सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है कि जब एक गैस दूसरे गैस के साथ कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाती है या फिर उसके साथ केमिकल रिएक्शन करती है, तो वो हमेशा सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम का सिंपल रेशियो के साथ कंबाइन करती है। जैसे कि डाल्टन ने दिया था, उन्होंने मास के टर्म्स में दिया था, इन्होंने वॉल्यूम के टर्म्स में दिया है। नेक्स्ट है हमारी एवोगैड्रो लॉ। इसे ऑफकोर्स एवोगैड्रो ने दिया था। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि हर तरह का गैस, चाहे फिर वो कोई भी गैस हो, उसका अगर मैं इक्वल वॉल्यूम लूँ, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में, तो उन सब के पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ये किसने दिया, एवोगैड्रो ने। ये भी सिर्फ गैसेस पे ही वैलिड है। बाकी आपका होमवर्क है कि आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ऊपर भी है सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब के बारे में आप खुद से पढ़ें। तो 5 लॉ तो हमने देख लिया। 6th लॉ क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। किसने दिया था, रिचर ने। क्या कहता है ये लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स combine separately with a fixed mass of a third element, then the ratio of their masses in which they do so is either same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. इसका मतलब क्या है, यानी कि मान लो कि एक एलिमेंट था A, दूसरा एलिमेंट है मान लो C, उसने इस एलिमेंट के साथ कंबाइन किया, और कौन से रेशियो से के साथ कंबाइन किया, 4:10 का रेशियो। A का 4 था और C का 10 रेशियो में इन्होंने कंबाइन करके कंपाउंड बनाया। मान लो दूसरा एलिमेंट था B और उसने भी C के साथ कंबाइन किया, मान लो 3:17 का रेशियो। तो A ने कंबाइन किया C के साथ 4:10 का रेशियो में, A का 4 C का 10, B ने कंबाइन किया 3:17 का रेशियो में, B का 3 और C का 12। तो इस लॉ के हिसाब से जब A और B साथ में कंबाइन करेंगे, तो ये A का 4:4 ये 3, 4:3 का रेशियो में कंबाइन करेंगे। ये लॉ बताती है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, इसका मास फिक्स्ड होना चाहिए, then the ratio of their masses in which they do so is either same, या तो वो सेम हो, और some whole number multiple,
यानी कि हो सकता है आप 4 और 8 लेते तो इसका रेशियो क्या होता, 4:8 यानी कि 1:2 का रेशियो होता। इसलिए या तो सेम हो या फिर सिंपल होल नंबर के मल्टीपल हो ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। तो ये हमारी 6th लॉ। अब आते हैं हम गैसेस पे। गैसेस दो तरह के होते हैं केमिस्ट्री में। एक तो होते हैं रियल गैसेस जो कि नेचर में रियल एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे आइडियल गैसेस जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने में हम आइडियल गैसेस की मदद लेते हैं। आइडियल गैसेस से क्या खासियत है? सबसे पहला है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं में कोई इंटरसेल्युलर फोर्स नहीं होती। नो इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंटरएटॉमिक फोर्स बिटवीन देम। इनके मॉलिक्यूल के पास कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। और क्या, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो कोई इंटरनल फोर्स भी नहीं होगी। इंटरनल फोर्स या इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इसका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा 0 होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम क्या लेता है, 0 लेता है। तो कोई इंटरनल फोर्स नहीं है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम नहीं है, और वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी नहीं है। ये रियल लाइफ केसेस में तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आइडियल केसेस में एग्जिस्ट करता है। अब आइडियल केसेस के लिए हमने एक इक्वेशन भी बनाई, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV is equal to nRT। PV is equal to nRT। यहां पर P क्या है? P है हमारा प्रेशर, V है हमारा वॉल्यूम, N है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, R क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या? टेम्परेचर। अब ये सबके यूनिट्स कौन कौन से हैं? प्रेशर के नॉर्मली हम यूनिट लेते हैं 1 atm। ये नॉर्मल हम क्वेश्चन पे यूज करने के लिए 1 atm यूनिट लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूनिट्स होते हैं प्रेशर के, जैसे कि 1 atm को हम 760 mm मिलीमीटर ऑफ Hg भी बोल सकते हैं, ये भी बहुत जगह होता है। इसे हम 76 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं ऑफ Hg। और इसे क्या बोल सकते हैं? इसे हम 760 टॉर भी बोल सकते हैं। 180 को और क्या बोल देंगे? 1.013 बार, अप्रोक्सीमेटली 1 बार। तो ये सारी चीजें हम प्रेशर के टर्म्स में यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए नॉर्मली हम cc यानी कि सेंटीमीटर क्यूब ये से यूज करते हैं, मीटर क्यूब भी चलेगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये क्या होता है? डिपेंड करता है किस पे? इकलौता डिपेंड करता है ये ऑन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किस यूनिट से मेजरमेंट हो रही है? क्या वो SI यूनिट से हो रही है, CGS यूनिट से हो रही है? उस पे डिपेंड करता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और क्या ये हर एक एवरी गैस के लिए सेम फॉर एवरी गैस, सेम फॉर एवरी गैस। हर गैस के लिए क्या होता है? R हमारा सेम होता है, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सेम होता है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये किसमें? SI यूनिट में 8.314 जूल पर केल्विन मोल, ये किसमें? SI यूनिट में। दूसरा एक है 0.0831, ये लीटर ATM पर केल्विन मोल, या फिर और लीटर बार
केल्विन मोल। इन केसेस में क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0831। जब हमारा जो प्रेशर है वो एटीएम के टर्म्स में या फिर बार के टर्म्स में लिया जाता है, तब जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 0.0831 और नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है 8.314। टेम्परेचर जो है हम नॉर्मली हमेशा केल्विन में लेते हैं, ठीक है। हम गैसियस लॉज पे हमने भी कैलकुलेशन पढ़ी, PV = nRT। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे लॉज बना सकते हैं, गैसियस लॉज। पहला लॉ हम कैसे बना सकते हैं, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लूं, इफ टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, अगर मैं इन दोनों को कांस्टेंट ले लूं तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, यानी कि क्या हो जाएगा, PV = कांस्टेंट। ये नॉर्मली कब होता है, जब ऐसे करेंगे हम कांस्टेंट बाय V, यानी कि P is inversely proportional to V। ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ यानी कि जब हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, अगर मैं दो अलग अलग गैसेस के लिए कैलकुलेट करूं तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, P1 V1 = P2 V2। ये एक गैस के लिए, ये दूसरा गैस के लिए। ये हो गया पहला लॉ। अब अगर हम करें कि टेम्परेचर को हटा के अब मैं मान लो वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट कर दूं, इफ नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, P is directly proportional to T। Gay-Lussac's law। Gay-Lussac's law, ठीक है। इसका भी ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये T है, ये P है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अब अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, इफ pressure and number of moles are constant, ये अगर कांस्टेंट हो गए तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, यानी कि V is directly proportional to T। इसे हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। ये भी ग्राफ सेम टू सेम, V और T का ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन। इसमें अगर मैं दो अलग अलग गैसेस के लिए कैलकुलेट करूं, मुझे अगर वेलोसिटी, वॉल्यूम और टेम्परेचर कैलकुलेट करना दो अलग अलग गैसेस का, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करती हूँ जब उसका प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।